Hello everyone. Hi Dr. Ashish Jain. Today we are starting a new topic, controlled drug delivery system. So in which topic we will cover the introduction part, terminology and definition and rationale behind the controlled drug delivery system, advantages and disadvantages of the controlled drug delivery system, selection of drug candidate or controlled release drug delivery system, approaches to design controlled release drug delivery system based on dissolution and diffusion ion exchange principles, physiochemical and biological properties of drug relevant to controlled drug delivery system. Now coming towards the learning objective of this session. After attending this session, learner will be able to define the term related to controlled drug delivery system. He will she will discuss rationale behind the design of controlled drug delivery system. You will be able to understand advantages and disadvantages of controlled drug delivery system. You will understand the selection of a right candidate for controlled drug delivery system. You will be able to understand the physicochemical and biological properties relevant to controlled drug delivery system. We will discuss here various approaches used in designing of controlled drug delivery system. Now coming towards our topic, and firstly we will discuss here the definition of controlled drug delivery system. Controlled drug delivery system is one which deliver the drug at predetermined and predictable rate, locally or systemically for a specific period of time. I will repeat again here. Controlled drug delivery system is one which delivers the drug at predetermined and predictable rate, locally or systemically for a specific period of time. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? जो कि ड्रग को डिलीवर करता है एट ए प्री डिटरमाइंड एंड प्रेडिक्टेबल रेट, लोकली भी कर सकता है और सिस्टमेटिकली कर सकता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. Here I can explain, we can understand the traditional drug delivery system and controlled drug delivery system via graph. So here I have taken the time on x-axis and cumulative drug release on y-axis. So you can see that this is the traditional drug delivery system. So firstly here is the immediate release of drug. Then it acquired the linear drug release. And whereas in the controlled drug delivery system, here the zero order control release is obtained. है ना? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिलीज हमको मिलता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पहले थोड़ा सा इमीडिएट रिलीज होता है और फिर उसके बाद रिलीज होता रहता है. तो ये दोनों का डिफरेंस इस ग्राफ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं. नाउ coming towards the sustained release drug delivery system. Sustained release drug delivery system क्या होता है उसको यहाँ पे समझेंगे. Sustained release drug dosage form may provide an immediate dose required for the normal therapeutic response. सबसे पहले क्या करता है वो immediate dose required for normal therapeutic response वो रिलीज करता है. जितनी डोज की जरूरत है नॉर्मल थेरापेटिक रिस्पॉन्स के लिए उतनी रिलीज करता है. देन followed by gradual release of drug an amount sufficient to maintain the therapeutic response for a specific extended period of time, usually 8 to 10 hours. है ना? सबसे पहले इमीडिएट रिलीज होगा जिससे नॉर्मल थेरापेटिक रिस्पांस के लिए जितनी डोज हमको चाहिए उतनी रिलीज होगी. उसके बाद फॉलोड बाय द ग्रेजुअल रिलीज, फिर धीरे धीरे उसकी ड्रग का रिलीज होगा जिससे सफिशिएंट मेंटेन टू थेरापेटिक रिस्पांस, जिससे जितना आपका थेरापेटिक रिस्पांस उससे मेंटेन रहेगा. कब तक के लिए? एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 8 to 10 आवर्स तक के लिए ये आपका होता है.
इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे कंसंट्रेशन को प्लॉट किया है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज यहाँ पे बाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। सबसे पहले इमीडिएट रिलीज में अचानक से पूरी ड्रग रिलीज होती है, ए एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर इसके बाद एलिमिनेशन हो जाता है। सस्टेन रिलीज में क्या होगा, पहले सस्टेन रिलीज में इमीडिएट डोज रिक्वायर्ड जितनी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स के लिए चाहिए उतनी आपकी रिलीज होगी और इसके बाद एक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और जबकि अगर हम कंट्रोल रिलीज की बात करते हैं तो कंट्रोल रिलीज में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक थेराप्यूटिक विंडो के अंदर कंसंट्रेशन काफी समय तक मेंटेन रहती है और एक लीनियर कंसंट्रेशन जो कि आपकी जीरो ऑर्डर रिलीज पैटर्न को फॉलो करती है और कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है ना। तो ये कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को शो करता है जीरो ऑर्डर वाला पैटर्न। Now, what is the difference between the sustained and controlled drug delivery system? तो sustained release drug delivery system और controlled release drug delivery system में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। पहले sustained release drug delivery system, इसमें रिलीज ड्रग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें ड्रग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलीज होती है। कंट्रोल वेयरेज इन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग रिलीज फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए ड्रग का रिलीज होता है। और इन सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म जनरली डू नॉट अटेन जीरो ऑर्डर रिलीज काइनेटिक, whereas in control drug delivery system attain zero order release kinetic, do not maintain constant drug level in blood target tissue in sustained release dosage form, whereas in control release drug delivery system maintain constant drug level in blood target tissue. It usually do not contain mechanism to promote the localization of drug to at active site. And in controlled drug delivery system, controlled dosage form contain method to promote localization of drug at active site. It is designed to slow the release of rate of active ingredient in GIT. It is designed to release the drug at predetermined rate. So these are the basic difference between the sustained release and controlled drug delivery system. Now, coming towards the difference between the conventional versus controlled release drug delivery system, तो conventional जो traditional drug therapy में और controlled drug delivery system में क्या difference होते हैं वो हम यहाँ पे discuss करेंगे। First difference, in conventional drug therapy, immediate release of drug after the administration, whereas in controlled drug delivery system कंट्रोल्ड एंड प्री डिफाइंड रिलीज पैटर्न यहाँ पे मिलता है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। एंड कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल फ्लक्चुएट होता है। पीक और वैली आपको इसमें मिलते हैं। किस तरीके से पीक एंड वैली मिलते हैं, ऐसा पीक और वैली आपको मिलता है किसमें, इसमें आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में। whereas in controlled drug delivery system, constant plasma concentration level maintain over a prolonged period of time, इसमें एक constant level आपको ऐसा मिलेगा, किसमें मिलेगा, ये आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसमें फ्रिक्वेंट डोसिंग की रिक्वायरमेंट होती है कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी में और इसमें रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ द डोसिंग, जबकि आपका कंट्रोल ड्रग थेरेपी में फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। देयर इज ए रिस्क ऑफ ओवर मेडिकेशन एंड अंडर मेडिकेशन, यहाँ पे ओवर मेडिकेशन और अंडर मेडिकेशन की एक रिस्क होती है। वेयर इज रिलायबल थेरेपी एट एज द रिस्क इज मिनिमाइज, यहाँ पे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। इसके बाद आपका है कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी में पुअर ड्रग बायो अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको इम्प्रूव ड्रग बायो अवेलेबिलिटी हमको देखने मिलती है ना। पुअर पेशेंट कॉम्प्लायंस होता है कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी में और यहाँ पे बेटर पेशेंट कॉम्प्लायंस होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल
drug therapy and controlled drug delivery system. Now, by this graph, we can understand the conventional drug therapy by single dose, double dose, IV dose and controlled release pattern, है ना। तो यहाँ पे टाइम को लिया गया है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिलीज परसेंटेज ऑफ इनिशियल लोडिंग, है ना। इनिशियल लोडिंग का क्यूमुलेटिव रिलीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज लोडिंग ऑफ इनिशियल लोडिंग, है ना, परसेंटेज ऑफ इनिशियल लोडिंग। सपोज अपन ने 100% लोड किया तो उसमें कितना डिक्रीज होता जा रहा है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को शो किया है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन या मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन भी इसको कहते हैं, है ना। सबसे पहले एक पॉइंट देखते हैं, सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं तो ये सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन किया, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ और इसके बाद फिर एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। और डबल डोज अगर एक साथ देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी और ऊपर से आपको पहुंचेगी और एक टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर जाती है। इस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन हुआ और इसके बाद एलिमिनेशन होगा, तो एक टॉक्सिसिटी को यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। थर्ड केस में बताया गया है कि आईवी डोज देते हैं तो आईवी डोज में पहले कंसंट्रेशन हायर होगी फिर उसका एलिमिनेशन होगा। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन पॉइंट तो इसमें होता नहीं, डायरेक्ट ब्लड में पहुंचती है ना आईवी डोज, और फिर उसके बाद सीधा एलिमिनेशन होता है। एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन पॉइंट इसमें नहीं दिखाया गया है, जबकि इनमें एब्जॉर्प्शन भी दिखाया गया है ए और बी में और इसमें डी में भी, ठीक है। कंट्रोल रिलीज में क्या होता है कि पहले इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेगा और जो मिनिमम इफेक्टिव और मिनिमम टॉक्सिक लेवल के बीच की जो कंसंट्रेशन है वो थेराप्यूटिक विंडो कहलाती है और थेराप्यूटिक बेनिफिट इसमें ज्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें ज्यादा मिल रहा है। तो ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की ऊपर जितने समय तक रहेगी वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहलाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंट्रोल रिलीज के केस में अपन को यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जबकि ए के केस में ये यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, बी के केस में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ का यहाँ तक है और उसमें टॉक्सिसिटी भी जनरेट हो गई, है ना। तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें ज्यादा हमको मिलता है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के केस में। यहाँ पे भी इमीडिएट रिलीज दिखाया गया है, जीरो ऑर्डर रिलीज दिखाया गया है और सस्टेन रिलीज पैटर्न को दिखाया गया है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। सबसे पहले टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पे आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ऊपर यहाँ पे टॉक्सिक लेवल बताया गया है, इसके नीचे सब थेराप्यूटिक लेवल बताया गया है ना। तो जैसे ही अगर अपन ट्रेडिशनल इमीडिएट रिलीज डोसेज देते हैं, ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी देते हैं तो एब्जॉर्प्शन होगा और फिर इसके बाद आपका एलिमिनेशन होगा। ये इमीडिएट रिलीज के केस में बताएगा। सस्टेन रिलीज में क्या होगा, पहले एक इमीडिएट डोज रिक्वायर्ड फॉर द टू अटेंड द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, वो डोज आपको यहाँ पे मिलती है, फिर उसके बाद थोड़े लंबे समय तक के लिए कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। ये सस्टेन रिलीज का केस बताया गया है। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर जो केस है ये कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म है। आप देख सकते हैं लंबे समय तक कंसंट्रेशन को थेराप्यूटिक विंडो के अंदर मेंटेन किया गया है। ये कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रग डोसिंग, द लेवल राइज आफ्टर ईच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड देन डिक्रीज अंटिल द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले लेवल बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, मतलब एक डोज दी और कंसंट्रेशन बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर डोज यहाँ पे दी, ये डोज दी जा रही है यहाँ पे डोज, है ना। तो ये डोज फिर दी, फिर कंसंट्रेशन राइज होती है फिर डिक्रीज होती है फिर राइज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमको ऐसा देखने को मिलता है। वेयर इज एन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक बार आप डोज देंगे तो लंबे समय तक थेराप्यूटिक विंडो के अंदर ऐसा मेंटेन रहेगा। तो ये जो पीक एंड वैली कहलाता है, ये पीक एंड वैली वाला पैटर्न ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको देखने नहीं मिलता है। ये इसका बेनिफिट्स हैं। एडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एडवांटेज में सबसे पहले रिड्यूस डोसिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस डोज साइज, लेस फ्लक्चुएशन इन द प्लाज्मा ड्रग लेवल, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, improve stability, improve bioavailability, improve safety and efficacy and improve patient compliance, है ना। डोसिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डोज भी कम हो जाती है, लेस फ्लक्चुएशन अपन को देखने को मिलता है ना। रिड्यूस ओवरऑल कास्ट, कास्ट इसकी रिड्यूस हो जाती है
और इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, बायोअवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, सेफ्टी एंड एफिकेसी भी इम्प्रूव होती है और पेशेंट कंप्लायंस भी इम्प्रूव होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के? फर्स्ट वन इज द डोज डंपिंग। डोज डंपिंग होने के चांस हैं। रिट्राइवल ऑफ ड्रग इज वेरी डिफिकल्ट, ड्रग को रिट्राइव करना डिफिकल्ट होता है। पुअर इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, पुअर इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन। रिड्यूस पोजिशनल ऑफ एक्यूरेस डोज एडजस्टमेंट, स्टेबिलिटी इशू इसमें हो सकते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ द फार्मूलेशन, फार्मूलेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी टू द फिजिशियन and no need of additional patient education, need of additional patient education, अलग से पेशेंट को एजुकेशन देने की जरूरत इसमें पड़ सकती है कि कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू, we will continue in the next lecture. Stay safe and healthy. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Advantages and disadvantages of the controlled drug delivery system.